Hello students. Okay, let's start the remaining exercise. Okay, of the last session of the chapter 4 determinants. Okay, so it's very important. From the question number 8. Okay, already 1 to 7 is completed in the previous lecture, and more 2 lectures. This exercise is completed. Okay, let's start. It is very important. Here the let A is given that. Okay, so A is equal to 1 minus 2 1 minus 2 3 1 1 1 and 5. So clear here. So first of that, in this normally the equations first, why it is very important, because यहाँ पे adjoint of A inverse. So first we take the 2 steps. First, okay, find out the A determinant of A first. So the 1, so into bracket, so 15 minus 1, how much? 14, right? Minus minus plus 2, that's right, minus 10 minus 1, so minus 11. Then after plus 1, right? So minus 2 minus 3, so minus 5 is equal to 14 minus 22 minus 5. So the simple here the 10, okay, so minus 8 minus 13 is not equal to 0. Okay, now adjoint of A I need. So first find out the C11. First find the C11. Okay, so here C11, that means, okay, so let's start. C11 positive. So we put here C11 matlab cofactors of the A11. So this height, so 3 1 1 5. So 15 minus 1 is equal to 14. C12, that means minus, okay, C12, then hide this, minus 2 1 1 and 5. So minus here, minus 10 and minus 1 minus 11, so minus minus plus, right? Okay, C13 is equal to positive, so 1 3 minus 2 1 3 1, understand? Okay, hide this. Okay, so there minus 2 and minus 3, minus 2 minus 3, you got minus 5. Then after C21, so negative 2 1, second row and third column is height. Second row and first column minus 2 1, okay, minus 2 1 and 1 5. So again minus 10. Okay, first I think C21 2 and 1. Right, so hide this, minus 2 and 1 5. Okay, again minus 2, so minus 2 and 1, so minus 2 minus 10 and minus 1 minus 11, we got plus 11. C22 positive is equal to, now here remember this, first it is clear that for in our side. So first adjoint of A 2 cross 2, sorry, to C22, then hide this. So 1 1 and 1 5, 1 1 1 5, 5 minus 1, how much? 4. Okay, C23 minus C23, 2 3, 1 1 1 and minus 2, right? So 1 minus minus plus 2, so 3. Sorry, is equal to 3. Now C31 positive value 3 1, hide this, minus 2 1 and 3 1. So minus 2 then minus 5, minus 2 minus 3 minus 5. Right? Okay. It's very important and big sum. So C32, right? C32. So 3 2, hide this. 1 minus 2 and 1 1, right? 3 2, that means. So you got 3 2 आगे minus, so minus into bracket 1 minus 3, so again 3, that means minus 3, and minus minus plus 2 and similar. Got it? Okay. Now C33, so C33 is positive 3, so 1 minus 2 minus 2 and 3, minus 3 and plus 4, 3 plus 4, no, 3 minus 4. You got minus 1.
चलो, सो नाउ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ओके ट्रांसपोज ऑफ योर कोएफिशिएंट। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ओके तो कैसे आएगा डायरेक्ट, तो आप सीधे रो को, जो ये रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो। तो पहले से ही हो जाए, तो ये 14 हो गया, ये 11 और ये -5। फिर C1 C2 2 2 एंड 2 1 2 2 2 3। So 11 4 and 3. So 11 4 and 3. Then 3 1 3 2 -5. Okay, 3 2 -3 and -1. So check this adjoint of A or not done, because अभी तो सम शुरू हुआ है, अभी तो हम लोग A इनवर्स भी ढूंढेंगे साथ में। तो चलो A इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल इनटू adjoint of A, right? Okay. So 1/13, but -13. Okay. So 1/13 मैं ले लेता हूँ और अंदर सबकी साइन चेंज कर देता हूँ इनवर्स के लिए, राइट? एडजॉइंट तो बराबर है, तो इनवर्स के लिए क्या हो जाएगा, -14, so -11 and +5, -11 -4 -3, okay, and 5 3 and 1। हमने क्या कर दिया, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बराबर दो चीजें हमें जरूरत थी, वो आपने ला दी। एक तो एडजॉइंट ऑफ ए ला दिया है, राइट? 5 -3 1 चेक कर लेते हैं। 3 2 2 3 2 ये क्या हुआ, 3 आगे माइनस है, तो माइनस, तो अल्टीमेटली वाला कौन सा आएगा, माइनस, राइट? और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। चलो ये दो चीज नोट डाउन कर लेते हैं बच्चों, क्योंकि इनवर्स हमें पता है 13, अब यहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ पे वो चीज लिख देता हूँ, राइट? अभी तो सम शुरू ही नहीं हुआ, जो नीड है वही हमने अभी खत्म किया है, राइट? तो चलो यहाँ पे लिख देते बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 14 11 -5, right? 11 4 -3 -5 -3 -1। ये क्या मिल गया, एडजॉइंट ऑफ ए। अब इनवर्स ऑफ ए साइड में लिख देते हैं, ओके, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है, तो बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं। लेट्स स्टार्ट ए इनवर्स। 1/13, ऑल साइंस आर नेगेटिव, सो इनसाइड दिस तो क्या कर दिया हमने, -14 -11 और 5, देन आफ्टर -11 -4 एंड 3, 5 3 1 5 3 1। चलो क्लियर, बस और इतना ढूंढ लिया, इसको रब कर देते हैं। चलो रिजल्ट 1, राइट? रिजल्ट 1 क्या बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। ओके, तो मैं LHS ले रहा हूं पहले, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, राइट? ओके, देख लो, तो हमें ए चाहिए, तो इनवर्स ढूंढना है, तो क्या चाहिए आपको, तो बहुत सीधी बात है, पहले जो भी मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट चाहिए। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, ए ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो आपका एडजॉइंट ऑफ ए रहा, तो आप बनाओगे 14 इंटू ब्रैकेट -4 माइनस माइनस प्लस, ओके, एंड प्लस माइनस माइनस, ओके, -11 इंटू ब्रैकेट, राइट? -11 इंटू ब्रैकेट, क्या करोगे, -11 and so okay, -11 -15, उसके बाद -5 और इंटू ब्रैकेट -33 एंड +20, राइट? ओके, तो you getting the answer 14 -13 -11 -26 -5 and -13, राइट? चेक करते जाओ, 14 इंटू 13, 13 6 जार, सॉरी 13 13 जार, तो हम 169 में 13 ऐड ही कर दो ना,
1 तो क्या हो जाएगा 3 and 12 हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉर्मली आ जाएगा -182 आएगा। माइनस माइनस प्लस 26 10 जार 260 260 प्लस 26 193 196 286 होगा। एंड माइनस माइनस प्लस 65 माइनस कर देते प्लस कर देते एंड वी गॉट दिस आंसर इज इक्वल टू 169 नॉट इक्वल टू 0। तो आप लिख सकते हो कि एडजॉइंट ऑफ ए और इनवर्स इज एग्जिस्ट, राइट। मैंने बोला ना अभी तो सम शुरू हुआ है। अब एडजॉइंट ऑफ ए का बच्चों अब आपको क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए का भी एडजॉइंट ऑफ ए ढूंढना पड़ेगा, राइट। वही तो बात समझनी थी, राइट। तो चलो सबसे पहले C11 किसके C1 मतलब एडजॉइंट ऑफ ए की बात हो रही है। स्टार्ट A11 ओके A11 तो क्या आएगा 4 -3 -3 -1 शांति से करते हैं -4 एंड -9 4 -9 आपने कर दिया -4 -9 -4 इज इक्वल टू -13। चलो आगे करते होगा C12 राइट। तो C12 कितना है इस क्वेश्चन के लिए तो माइनस पहले तो C12 करोगे आप 11 एंड -5 -3 -1 इज इक्वल टू माइनस सो -11 -15 -26 so +26 clear। now let's start another values okay। तो सबसे पहले C13 so पॉजिटिव C13 क्या आएगा बच्चों तो हाइड कर दो A3 and 1 ये वाला और A3 सो यहाँ पे 11 -5 है 4 and -3 फर्स्ट है तो ओके 13 पॉजिटिव -33 प्लस 20 you got -13 then after C21 नेगेटिव राइट वैल्यू बनाओ चलो 21 तो फर्स्ट जो कॉलम दिख रहे उसको हाइड और सेकंड रो को कर दो सो 11 यहाँ पे -5 आ गया उसके बाद ठीक है सर -3 एंड -1 सो -11 and -15 you got -26 C322 और C22 पॉजिटिव 222 तो सीधी बात है क्या आ जाएगा 14 एंड -5 -5 के नीचे -1 है तो 14 के नीचे क्या है -5 थर्ड में राइट ओके। तो अगेन -14 एंड -25 ओके आगे तो प्लस ही है देखो यहाँ पे देख तो माइनस था और आगे भी माइनस ओके तो चेक करना करते रहना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा -26 और +26 होगा इधर हो जाएगा -14 एंड -25 तो ये तो 9 तो 39 आ गया एंड दिस इज नेगेटिव। C23 तो पहले ही नेगेटिव ओके C32 तो हाइड कर दो 14 एंड 11 नीचे आएगा -5 -3 सो -42 -55 बट आगे क्या है राइट माइनस साइन है राइट सो 42 एंड माइनस प्लस 55 तो 13 बचेगा प्लस लेकिन बाहर क्या है माइनस सो इधर -13। अगेन C31 बच्चों तो C31 ये हम लोग किसके लिए कर रहे हैं समझ में आया ना एडजॉइंट ऑफ है ओके 31 चलो थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम क्या आएगा 11 4 -5 -3 31 तो पॉजिटिव है सो -33 प्लस 20 यू गॉट -13। C32 आगे माइनस एंड फिर ब्रैकेट चलो 32 तो इधर आ जाएगा 11 14 एंड 11 राइट 32 -5 एंड -3 14 3 जार आगे माइनस है तो -42 एंड +55 +3 इज इक्वल टू -13। लास्ट C33 तो ये पॉजिटिव ही है C33 सो 14 11 फिर 11 एंड 4 राइट ओके सो 14 56 -121 इज इक्वल टू नेगेटिव तो माइनस कर देते
सीधी बात है, इधर 5 आ जाएगा। ओके 11 माइनस 5 6 तो माइनस 65। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एडजॉइंट ऑफ ए। तो क्या करेंगे, सीधा ही उसको कन्वर्ट कर देंगे, राइट। तो C11 है उसको कॉलम वाइज ही लिख देंगे। सो माइनस 13 आ गया, 26 एंड माइनस 13। चलो फिर आगे आपका C12 है तो 26 आया, माइनस 39 एंड माइनस 13। देन आफ्टर माइनस 13 एंड माइनस 65, राइट। बेसिकली बहुत सिंपल है बट कॉम्प्लिकेटेड, लंबा है इसीलिए। चलो मुझे इतना तो मिल गया बच्चों, याद रखना है इसको, एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, अब फर्स्ट रिजल्ट इज कंप्लीटेड। तो नॉर्मली फॉर्मूलाज क्या है, ओके, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स तो मुझे मिल गया, डिटर्मिनेंट भी मेरे पास है, चेक कर लो। ओके, तो अब मैं फॉर्मूला इनपुट करूंगा, क्या करूंगा, फॉर्मूला। ये चाहिए ना हमें, राइट। तो चलो इतना याद रख लेना, डिटर्मिनेंट कितना है, 169 आया हुआ है। ओके, तो सो देयरफॉर हमारा एलएचएस आ गया है, एडजॉइंट ऑफ इन ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन adjoint of A in the determinant form into adjoint of A, right? ओके, कोई बात नहीं, इधर आ गया 169 और ये आपने फाइंड आउट कर लिया। देखो क्या कर लिया है, तो क्या 13 फिर 26 माइनस 13, नहीं फर्स्ट वाला भी नेगेटिव था। ओके, तो नेगेटिव माइनस 13, बहुत सारी वैल्यू क्वांटिटी नेगेटिव है। 26 माइनस 39 माइनस 13, सो माइनस 13, ओके माइनस 13 माइनस 65, राइट। मैट्रिक्स से बच्चों चेक कर लो, तो सब में से क्या कट हो रहा है, 13 कॉमन निकाल दो, कट हो। सो 1/13 इंटू क्या आ जाएगा, 13 है तो माइनस 1 2 माइनस 1 फिर 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 5। चलो क्लियर, ये आपका क्या आ गया, एलएचएस आ गया। ओके, तो इक्वेशन नंबर 1 दे दो ताकि आपको याद रहे। तो 1/13 रिजल्ट याद रखना, 1/13। चलो अब हमें उसकी साइड देखना है, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। ओके, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, राइट। तो ए इनवर्स क्या है हमारे पास, ये लिखा मैंने ए इनवर्स है। अब उसको स्टार्ट करेंगे, राइट। ओके, तो और एक क्वांटिटी अब याद रख लो, ए वाली। ओके, तो आप शो करके साइड में रख दो। चलो, क्योंकि अभी इसकी जरूरत पड़ेगी ए एडजॉइंट मतलब आप जानते हो कैसे हम लोग करते हैं, लेकिन डिफिकल्ट भी है इतना। तो लेट्स स्टार्ट, एलएचएस हमें मिल रहा है बच्चों। ओके, ये रिजल्ट आप लिख लो ताकि आपको कंपेयर करने में आसानी हो, राइट। तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, चलो अभी इसकी जरूरत नहीं है तो मैं रब कर देता हूँ और इसकी जगह पे हमारा एलएचएस लिख देता हूँ, राइट। तो आपका एलएचएस का आंसर आया 1/13 और इंटू ब्रैकेट -1 2 1 मतलब -1 2 माइनस 3 -1, ओके -1 एंड -5। अंडरस्टैंड, ये याद रखना आपका एलएचएस। चलो अब सब की जरूरत नहीं है, बाकी तो सारा ऊपर है ही हमारे पास। ओके, अब सबसे पहले तो आरएचएस क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। तो ए इनवर्स जो आपका मैट्रिक्स है ना, उसका एडजॉइंट लाना है। तो उसका मतलब हुआ एडजॉइंट, ओके, ऑफ 1/13। ओके, मैं ऐसे लिखता हूँ 1/13 एंड आपका मैट्रिक्स -14 -11 एंड 5 -11 -4 3 5 3 1। अब आप सोचो, राइट, ये 13 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया बच्चों, अंदर लेना ही पड़ेगा क्योंकि आपको सॉल्यूशन करना है, तो आप एक एक स्टेप्स करके लाना है। तो सब भी अंदर गएगा, आप डिटरमिनेंट के फॉर्म में लाओगे ना, तो क्या करते हैं हम लोग, 3 जगह से एक कॉमन निकल रहा है, क्या होगा, 3 जगह से। ये बात समझ लो ताकि आपको ये सॉल्यूशन लाने में बहुत आसानी रहे। ओके, वरना इसका तो बहुत लंबा हो जाएगा, पागल हो जाओगे। ओके, चलो तो भी एक बार बता देता हूँ। तो एडजॉइंट ऑफ ए -14/13 आपका एलिमेंट्स हो गया, -11/13 आ गया और यहाँ पे 5/13। चलो -11/13
-4/13 हो गया एंड 3/13, फिर 5/13 है, 3/13 है एंड 1/13 है। अंडरस्टैंड? अब आपको एक एक करके ढूंढना है। क्वाइट डिफिकल्ट? यस ऑब्वियसली, ओके, हाई डिफिकल्टी है अब सॉल्व करना, बराबर। तो आइडियाज तो आपको लाना ही पड़ेगा कुछ भी करके, तब जाके आप मतलब उसके आंसर तक पहुंच पाओगे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। और करना है तो करना है। C11, चलो क्या आएगा C11 में? सो -14/13, C11 सॉरी, तो C11 में आएगा रो एंड कॉलम, सो -4/13, 3/13 बच्चों, राइट, रो एंड कॉलम हाइड, सो 3/13 एंड 1/13। तो आपका जो आंसर है वो बन जाएगा 4/169 माइनस 9/4 and 169, you got -13/169, राइट, गॉट इट? ओके, अब तो सफर शुरू हुआ फिर से। चलो C22 आगे माइनस, राइट, माइनस है C22, सो -11/13, 3/13, उसके बाद 5/13, राइट, C12 है भाई, 1 2, राइट, 1 and 2, सो हियर 1/13 इज इक्वल टू माइनस करो, -11/169 और 15/169, -26 आएगा। ओके, सो -26 into 169, so you got -+26 into 169। कट करते रहेंगे, कोई बात नहीं, करना चाहो तो अभी से ही कर सकते हो, कोई झंझट नहीं। ओके बच्चों, नो प्रॉब्लम्स, डजंट मैटर। चलो C13 कर देना यहीं से ही। चलो 13, लेट्स स्टार्ट। तो पॉजिटिव 13 बच्चों, तो 1 इससे लेना, 1 और 3 हाइट, एक 3 है और एक 1 है, सो 11/13। अब ध्यान से देखना, 11/13, राइट ना, ए और ए हाइट से, -11/13, -4/13, 3/13 and 3 नहीं, 5/9, राइट, सो 5/13 and 3/13 क्या हो जाएगा? ये तो -11 ही है, 11 3 33 एंड +20, राइट, सो -13 बचेगा 169, लिख सकते हो -1/13, कोई झंझट नहीं है इसमें। ओके, है तो है। ओके, चलो अब C21 माइनस, अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ आगे माइनस, C21 अब आपको समझ में आ ही गया है, तो हम लोग थोड़ा बच्चों डायरेक्ट करते हैं। 11 इन दोनों का -11 और ये -15, -26, अगेन -26 into 169, कट कर दो। ओके, तो क्या हो जाएगा, माइनस मोड 2/13 आ जाएगा। चलो C22 तो पॉजिटिव ही है, C22 सेकंड रो हाइड कर दो, राइट, तो -14 -25, -14 -25 39, राइट, -39, सो -39/169 इज इक्वल टू -3/13। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और 2 3 आया बच्चों। अब 2 3 के लिए क्या करेंगे, माइनस। ओके, अब देखते हैं 2 3, तो ए रहा सेकंड रो थर्ड कॉलम, राइट, तो ए तो -42 एंड +55, सो 13/169, तो इज इक्वल टू -1/13। चलो C31 पॉजिटिव 31 है, तो हाइड दिस एंड दिस, राइट, तो -33 +20, तो -13 into 169, तो इज इक्वल टू -1/13 बच्चों। C32, राइट, समझ में आ रहा है ना, ये थोड़ा शॉर्टकट रहेगा हमारे लिए। अब इतना तो आना चाहिए। तो C32 थर्ड कॉलम ये रहा, और इसको हाइड कर दे, तो थर्ड और 3, तो कितना मिला आपको? हमने यहाँ पे अभी C1 किया ना, तो हाइड 11 3 33 -20 -13/169 बराबर है।
अब इसकी बारी, तो इसको और इसको ऐड कर दे तो 42 माइनस एंड प्लस 55 तो 13 169 तो अगेन माइनस 1/13 राइट। C3 3 बच्चों तो C3 3 लास्ट वाला तो 56 प्लस एंड माइनस 121 so minus 65 upon 169 राइट इज इक्वल टू माइनस 5/13 राइट। ये भी कट कर देंगे हम लोग। तो हमारे पास जो आया ना एडजॉइंट है तो उसका क्या लेना पड़ेगा, ट्रांसपोज। क्या लेना पड़ेगा बच्चों, ट्रांसपोज राइट। ओके अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। तो ये रब कर देता हूँ क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी अब। ओके तो आपका RHS आ गया एडजॉइंट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू कॉलम वाइज लिख दो। तो ये आपके पास कितना है 1/13 माइनस 2/13 हो गया, फिर माइनस 1/13 हो गया, बराबर है। ओके देन आफ्टर सी 2/13 हो गया, माइनस 3/13 है, माइनस 1/13 है, माइनस 1/13 है, माइनस 1/13 है, माइनस 5/13 है राइट। ओके सो 1/13 आप बाहर निकाल दो तो यू गेट दी -1 2 -1 2 -3 -1 -1 -1 -5 right। so it is the your answer here LHS is equal to RHS right। तो ये आपने अभी तो इक्वेशन 1 कंप्लीट किया, वेरीफाई किया। ओके सो कॉम्प्लिकेटेड सम ऐसा टाइम कंज्यूमिंग है, पूछ सकते कोई भी एक रिजल्ट। तो लेट्स स्टार्ट नंबर 2 ए इनवर्स ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू ए। ये प्रूव करना है आपको, कोई बात नहीं। चलो अब इसकी तो जरूरत नहीं है, मुझे जो जरूरत था ए इनवर्स हमारे पास है तो ए इनवर्स का एडजॉइंट करना पड़ेगा ना बच्चों। तो ए इनवर्स का एडजॉइंट आप याद रख लो। तो मैं इसको रब कर देता हूँ ओके और आपका ए रिजल्ट जरूरत पड़ेगी ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/13 राइट। कितना आया अब लिख दो, इसीलिए लाने में आसानी रहे। 2 - 3 - 1 -1 -1 -5 चलो क्लियर। बस अब रिजल्ट 2 से स्टार्ट कर रहे बच्चों। राइट चलो क्या आएगा बच्चों बताएं आपको यहाँ। तो रिजल्ट 2 उसका LHS लेफ्ट हैंड साइड ए इनवर्स ऑफ इनवर्स। तो मुझे ए इनवर्स 3 चीजें याद रखनी है बच्चों। आपको ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट लाना है। क्या करना है, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ओके एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स लाना है जो हालांकि हमारे पास रेडी है ओके। और फिर आपको इसके फॉर्मूला में रखना है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए इनवर्स डिटर्मिनेंट राइट और इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। बस इतना काम करना है। एक क्वांटिटी आपके पास है, खाली एक ही क्वांटिटी नहीं है दिस। चलो उसको ला देते हैं, इसमें क्या है। तो अब मैं ए इनवर्स जो है उसको 13 को अंदर ले जा रहा हूँ, ध्यान रखना क्योंकि डिटर्मिनेंट है वो आपको समझना है। कितनी रो है ताकि आपको प्रॉब्लम्स नहीं है। सो -14/13 आपने ले लिया, -11/13 एंड 5/13, फिर -11/13 -4/13 एंड 3/13। देन आफ्टर 5/13 है आपके पास ओके, 3/13 है और 1/13 है राइट ओके। तीनों में से निकलेगा तो 1 क्या होगा 13 का क्यूब हो जाएगा। अब आप डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करो। -14 राइट समझ में आया नहीं है तो और एक स्टेप लिख दो ताकि थोड़ा आसान हो जाए। आपको इसका डिटर्मिनेंट लाना है ओके। चलो क्या आ जाएगा अल्टीमेटली -14 -11 5, फिर हो जाएगा -11 -4 3 और हो जाएगा 5 3 एंड 1। अब तो ये हो जाएगा 13 का मैं क्यूब एज इट इज रख रहा हूँ। चलो ये 14 माइनस इनटू ब्रैकेट तो
-4, ये -4 -9 -13 हो गया, माइनस माइनस प्लस 11 हो गया, हाइड कर दो -11 -15 -26 हो गया, ओके +5, ओके तो +5 मैं कर देता हूँ यहाँ पे क्योंकि मुझे डिटरमिनेंट लाना है ऐसे, तो ये मैंने कर दिया, ओके तो यहाँ पे 5 फिर 33 क्या है -33 + 20 -33 क्या है आपके पास -33 एंड +20 तो -13 हो गया। चलो तो ये आपके पास आ गया 33 × 13 × 13 राइट इंटू ब्रैकेट, इन दोनों का प्रोडक्ट करो तो हमने पिछली बार किया था, ओके फिर कितना आ जाएगा 11 26 260 × 80 हो जाएगा, और तो अल्टीमेटली हमें यहाँ पे जो वैल्यूज है बच्चों वो हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे -169 कितना आ जाएगा, आगे कर चुके हैं तो ये सब कुछ कट हो गया, तो आई गॉट का वो -1/30 मिला, इज नॉट इक्वल टू 0। अब नॉट इक्वल टू 0 है उसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 है तो उसका मतलब एडजॉइंट ऑफ ए सॉरी यहाँ पे आप लिख सकते हो, सो देयरफॉर ए इनवर्स ऑफ इनवर्स इज एग्जिस्ट, राइट लिखना जरूरी है, ओके तो अब क्या किसकी जरूरत पड़ेगी, सो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, राइट ये तो ऑलरेडी हमारे पास है ही, तो मैं खाली लिख लेता हूँ 1/13, ओके -1 2 -1 2 -3 -1, सो -1 -1 एंड -5 ये मैंने आपको बता दिया। अब आप क्या करोगे यहाँ पे, ये तो बहुत आसान हो गया, अब जो नेक्स्ट स्टेप है वही समझना है। चलो तो फाइंड करो ए इनवर्स ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू, वो फॉर्मूला क्या है 1/a इनवर्स ऑफ डिटर्मिनेंट, राइट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, फॉर्मूला ही लिख दी, तो ए तो कितना आया -1/13 आया, और ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स तो ए भी 13 है, राइट चलो समझ में आया, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, ओके तो इधर तो 1/13 है और आपके पास ए भी आ गया और एडजॉइंट ऑफ ए है, तो ए रहा देखो आपके पास, तो माइनस माइनस जो है वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, बराबर है चेक करो, तो ए इनवर्स ए 1/13 है ना एडजॉइंट ऑफ, तो इधर क्या हो जाएगा -13/13 आ गया, और ये वैल्यू -1 2 -1 हो गया 2 3 -1 हो गया -2 3 फिर -1 एंड -5 माइनस साइन अंदर चेंज हो गई 1 -2 1 हो गया -2 3 1 हो गया 1 1 5 राइट, चलो क्लियर ए वैल्यू, तो देखो ए कौन हो गया इज इक्वल टू ए, राइट अंडरस्टैंड दिस, ओके तो ये वाला क्वेश्चन था जो बहुत टाइम ले, और एक मिस्टेक हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाए, आप भी जानते हो ऐसा एक क्वेश्चन था, चलो क्लियर। अब देखो क्वेश्चन 9 10 इवेल्यूट कर सकते हो, बराबर, तो ऐसा एक क्वेश्चन नॉर्मली आपके पास था, तो बच्चों बाकी के जो 3 सम है ओके वो आपको होमवर्क में करने हैं, इवेल्यूट नॉर्मली क्या है, इवेल्यूट 9 में क्या करोगे एडिशन कर दोगे कॉलम वाइज या रो वाइज, उसमें से +2x + y कॉमन निकल जाएगा, क्या करोगे 2x + y कॉमन, तो थोड़ी हिंट दे देता हूँ 9th में, राइट फिर 10th में भी आपको वही काम करना है, अंडरस्टैंड क्लियर, तो बहुत ध्यान रख के ये सॉल्व आप कर सकते हो, तो एक बार चेक कर लो, मैं आपको थोड़ी हिंट दे देता हूँ, ओके लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चंस। राइट अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में आप क्या करोगे, हिंट की जरूरत है, आपका LHS जो है वो राइट इवेल्यूट करना है, सो वो क्या है x + y फिर y एंड x + y ओके एंड x, सो x + y x एंड y बचो, तो क्या करोगे सिंपल है, R1 के अंदर आप कर सकते हो R1 + R2 एंड +R3, हिंट दे रहा हूँ राइट, तो आपके पास 2 आ जाएगा x + y हो जाएगा 2 × x + y हो जाएगा, ओके 2 × x + y हो जाएगा, चलो क्लियर, ओके समझ में आया बच्चों। उसके बाद ये सब एज इट इज y × x + y x + y × x एंड y, चलो राइट बस, तो 2 फिर
2 इंटू एक्स प्लस वाई कॉमन निकाल दोगे 1y x प्लस वाई, फिर 1x प्लस वाई एक्स, ओके x अगेन 1x एंड y, राइट। अब माइनस करते जाओ, वो आपकी मर्जी कॉलम बाय, और फिर उसको स्प्लिट कर देना, राइट। तो यहाँ पे बता देता हूँ बस खाली इतना, तो 2x प्लस वाई, यहाँ पे आप क्या करोगे, इसमें से ही माइनस और इसमें से ही माइनस कर दो, तो 1y एंड x प्लस वाई एज इट इज, 1 में से बन जाएगा 0, यहाँ पे माइनस तो x, यहाँ पे चला जाएगा माइनस x, तो माइनस y बचेगा अगेन, राइट। इसमें से ये माइनस करो, राइट, x माइनस वाई आएगा ना, तो इससे इसमें से कर दो तो 0, इधर क्या बचेगा, x माइनस है तो माइनस वाई, और इधर आ जाएगा y माइनस एक्स, और इसको स्प्लिट कर दो फिर, राइट। जो सिंप्लीफिकेशन है वो आपका आंसर होगा। चलो क्लियर। तो ये मैंने आपको 9 की हिंट दी, ऐसे 10th में करना है बच्चों, ओके। तो 10th में भी आप क्या कर दो, RI2CI कर दो और फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो दोनों सम एक ही जैसे है, ओके। तो बच्चों ये जो वाले सम्स है वो आप खुद कर सकते हो, ओके। जो 11 की हिंट तो 11 क्वेश्चन में क्या करोगे, अल्फा बीटा गामा है तो C1 C3 के अंदर C3 प्लस C1 करोगे, राइट। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा, कॉमन निकाल दो, फिर 1 1 आ जाएगा, अंडरस्टैंड। 1 1 आ जाए तो आपका काम आसान है, फिर से RI2CI कर दो या फिर आप माइनस कर दो, ओके। तो कॉलम छोटा हो जाएगा और फिर इसको सिंप्लीफाई कर दो, आप आंसर तक पहुंच जाओ। क्लियर, okay, so thank you for this watching my video. Next in next lecture we complete the this exercise and also the chapters. Till then and bye bye.